ओके है ना. सो नाउ वी हैव गिवन M1 equals to 0.2 molar, V1 equals to 200 ml. है ना. Now the question is 300 ml of water is added. So V2, which is our final volume, it is 200 plus 300, so it is equals to 500 ml. है ना. And we have to calculate M2. So whenever in any problem there is the word addition of water, it is simply the dilution, case of dilution, and you have to apply the formula M1 V1 equals to M2 V2. So 0.2 into 200 equals to M2 into 500. So from here we will calculate M2, which is equals to 0.08 molar. Okay. Note down the next problem, that is how much water should be added in 250 ml of semi-molar NaOH solution to make it decimolar. Okay. I am once again repeating the problem. How much water should be added in 250 ml of semi-molar NaOH solution to make it decimolar. Okay. So now the solution of this problem, we know the meaning of semi-molar. Semi-molar means half mole in 1 liter. Okay. V1, the initial volume of the solution is 250 ml. Now the question is how much water should be added in this solution to make it decimolar. So again, first of all, we have to understand the meaning of decimolar. Decimolar means 1 by 10 moles of solute in 1 liter of solution. So our M2 becomes 1 by 10. We have to calculate the volume of water. Okay, so we are assuming that V ml of water is added. So our final volume will be 250 plus V ml, and again the case of water, we have to just apply the formula M1 V1 equals to M2 V2. So 1 by 2 into 250 equals to 1 by 10 into 250 plus V, and from here V will be equals to 1000 ml. Okay. So now we are coming to our last topic, that is molarity of mix. हाँ बस एक मिनट ये टॉपिक हो जाए, हाँ फिर डिस्कस कर रहा हूँ. तो नाउ वी आर कमिंग टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग. ठीक है. तो इन मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग व्हाट हैपेंस, वी विल मिक्स मोर देन वन सॉल्यूशंस, एंड अ न्यू सॉल्यूशन इज फॉर्म. वी हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दैट new solution. Okay, so molarity of mixing concept is always applicable for more than one solution. The first thing we have to remember, it is always applicable for more than one solution, having the first condition is same substance, है ना, और हैविंग सेम आयन. ठीक है ना. तो ये पॉइंट कल नहीं लिखा था, ये लोग नोट कर लेना. इट इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन, और उन दोनों सॉल्यूशंस में सब्सटेंस या तो सेम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, आपका आयन सेम होना चाहिए. लाइक इफ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, इफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज ऑफ HCl, देन सेकंड सॉल्यूशन विल आल्सो बी ऑफ HCl. And what is the meaning of ion? If one solution contain NaCl, then another may contain NaNO3. Okay, so at least one ion is common in both the substance. For this type of cases, molarity of mixing formula will be applicable. It is not applicable for substance having different nature. It is not applicable for substance having different nature. Like you cannot apply this formula for HCl, mixture of HCl and NaOH. Why we cannot apply this formula for mixture of HCl and NaOH? Because HCl is acidic, NaOH is base. They will react with each other. Okay. So they will react with each other. That's why we cannot apply the formula of molarity of mixing. Okay. So this
concept is applicable only for those substances which will not react with each other. There should be no reaction. It is a most important condition. So like I am giving you first solution. This is your solution 1. The molarity of solution is M1 and its volume is V1. I am giving you second solution, solution 2. Its molarity is M2 and volume is V2. And we are mixing these two solutions in a third container. Here a new solution is formed and we have to calculate the molarity of this solution. MR stands for resultant molarity. So again, if I am going by the basic formula of molarity, molarity is nothing but number of moles of solute present per liter of solution. So I have to calculate the number of moles as well as volume after mixing. In books directly formula is given, but we have to understand the meaning of formula, why this formula, how this formula is deriving. So we are just calculate these two things. We know that when we are mixing two substances, volume is an additive property. So total volume of the mixture will be V1 plus V2. Now here comes the question of number of moles. In the first solution, we have the formula for calculating number of moles in terms of molarity and volume, and that formula is number of moles equals to molarity into volume. Okay. So in the first solution, how many moles are present? M1 V1. And in the second solution, how many moles are present? M2 V2. So what will be my resultant molarity? It will be in the numerator, there will be number of moles. So M1 V1 plus M2 V2, and in the denominator it is volume. It is applicable for two solutions. If I have three solutions, then what will be the formula? M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 upon V1 plus V2 plus V3. And if I am having 4, then M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 plus M4 V4 upon V1 plus V2 plus V3 plus V4. So in general we can write MR is nothing but summation of MI VI upon summation of VI. Okay. So now note down one problem on this. 200 ml of 0.2 molar HCl solution. 200 ml of 0.2 molar HCl solution is mixed with 300 ml of 0.3 molar HCl solution. Is mixed with 300 ml of 0.3 molar HCl solution. Calculate final molarity of solution. Calculate final molarity of solution. So what we have to do? This topic is again very simple. All the data will be given. M1 is what? First of all, what we have to check? Both the substances are same. So they will not react with each other. We can directly apply the formula of molarity of mixing. M1 is your 0.2 into volume is 200 plus 0.3 into 300 upon 200 plus 300. There is one confusion. Students normally put the volume in liter over here. There is no need. There is one thing you have to remember, that if you are putting volume in ml in the numerator, then you have to put the volume in ml in the denominator also. So there is no need to convert this volume into liter. जो आपने करा है वो भी सही है, but without converting you can also solve the problem. ठीक है? Normally I have already told you in the laboratory volume is always in ml, because we have a small test tubes flask, their volume is in ml. Okay, so it is in this formula it is advisable put the volume in ml, do not convert it into liter. Okay, but the only thing you have to remember कि in the numerator and denominator the unit of volume should be same. So answer will be same. 0.2 into 200 is 40 plus 90 upon 500, so it is
130 by 500 and finally our answer will be 0.26 molar. One thing regarding this formula you have to remember that if you are mixing two solution, like I am giving you a JH technique. What is the meaning of JH? Jara hatke. JH is my name, Jiten Irvani, but the technique is named as Jara hatke technique. If you are mixing two solution, the molarity of first is 0.2, second is 0.3. So there is one rule you have to remember, because in objective problem you have given 4 options. You have to select only one intelligent option. So in the case questions of mixing of molarity, like this year in JEE Mains 2013, one question is already on there on molarity of mixing. We are doing that problem also. So there is one simple concept, you have to just think that the molarity, resultant molarity will always be in between the molarity which you are mixing. There is one shortcut. So suppose if the options are 0.15, 0.25, 0.35 and 0.26. These are the 4 options given. So first of all, by intelligent guessing, I have to reject the absurd answers, and in this case the absurd answer are 0.15 and 0.35. Why? Because we know that molarity of mixing will always lie in between the molarity of original solution. So these two cannot be our answer. Without solving, I am giving a technique to solve the problem. Okay. Now there are 2 options which are in between. How do we select the intelligent gas again? This 0.25, it is the average of 0.2 and 0.3. ठीक है ना? तो 0.2 और 0.3 का एवरेज है या 0.25. एवरेज तभी हो सकता है जब दोनों का वॉल्यूम भी क्या होता, सेम होता है ना. अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होता तो यू कैन सी यहाँ 200 हो जाता, यहाँ भी 200 हो जाता. ठीक है, नीचे 200 प्लस 200 कितना होता है, 400. तो अगर मैं कैंसिल कर देता तो ये 200 कैंसिल होके ये भी 200 कैंसिल होके नीचे कितना आ जाता, 2 आ जाता. तो इट इज सिंपली 0.2 प्लस 0.3/2 जो एवरेज हो गया है ना. 2 नंबर का एवरेज निकालने के लिए उनका सम डिवाइडेड बाय 2. 3 नंबर का एवरेज निकालने के लिए उनका सम डिवाइडेड बाय 3. तो ये आंसर तो तब होता जब वॉल्यूम सेम होता. अभी वॉल्यूम सेम नहीं है तो ये आंसर भी क्या हो गया मेरा, रिजेक्ट. तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 0.26. तो ये सब टेक्निक अगर आप एग्जाम में लगाते हो तो इससे आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी. इस टॉपिक के ऊपर है ना जेईई मेंस 2013 में आपका क्वेश्चन आ चुका है. नहीं, सिंपल ही था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द डाटा. हाँ, डाटा भी याद है मुझे. तो आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2013 है ना. The question was 750 ml of 0.5 molar HCl solution is mixed with 250 ml of 2 molar 250 ml of 2 molar HCl solution. Final molarity of solution will be. This was the question of JEE Mains 2013. नहीं, मेंस में, मेंस मतलब AIEEE पैटर्न, तो मेंस में क्वेश्चन काफी सिंपल था. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की इसके चारों ऑप्शन उसने खूब बढ़िया दिए थे है ना. जैसे अब जो है ना वी आर मिक्सिंग कौन कौन सी मोलरिटी के सॉल्यूशन, 0.5 एंड 2 मोलर. तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए इनके बीच में. उसने बस एक चालाकी कर दी थी कि सभी आंसर 0.5 और 2 के बीच में थे. फर्स्ट वाज 0.875, सेकेंड वाज 1.25 मोलर. 2 ऑप्शन मुझे याद नहीं है अभी, बट सभी ऑप्शन इन दोनों नंबर्स के बीच में थे. तो अभी जो मैंने इंटेलिजेंट गैसिंग बताई थी वो आप अभी डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे ना. तो सॉल्व करो, क्या होगा जल्दी से ना. कितना हो जाएगा हमारा 0.875.
है ना। तो अगेन इट इज सिंपली द सेम क्वेश्चन, 0.5 मोलरिटी इंटू पॉइंट इनिशियल मोलरिटी कितनी दी थी मैंने आपको, 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 750 प्लस 250 दैट इज 1000। तो ये मेंस में इस तरह के भी क्वेश्चन आ गए बेटा। 0.5 इंटू 750 375 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 1000, सो 875 बाय 1000, सो माय आंसर विल बी 0.875 मोलर। ठीक है, नोट डाउन वन मोर प्रॉब्लम। 300 ml of 0.2 molar NaCl solution, 500 ml of 0.3 molar MgCl2 solution, 500 ml of 0.3 molar MgCl2 solution, 800 ml of 0.3 molar AlCl3 solution, and 2 liter of water are mixed together, and 2 liter of water are mixed together. Determine concentration of Cl minus ion in the final solution. Determine concentration of Cl minus ion in the final solution. Wrong. It is wrong. ठीक है, देखो आपको क्या क्या दिया है मैंने, 200 ml 0.2 molar NaCl. Okay. Second is 500 ml of 0.3 molar MgCl2. ठीक है ना, 800 ml of 0.3 molar AlCl3 and 2 liter of water. So first of all, है ना, convert it also in ml. These are the 4 solution. है ना, just now I told you the molarity of mixing concept is applicable only for the solutions having same nature, that is they should not react with each other, and if any one of the ion is common, that type of substance cannot react with each other. इन सभी में कौन सा आयन कॉमन हो चुका है आपका, Cl माइनस। ठीक है ना, प्रीवियस केस में तो अभी जो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, इन बोथ द केसेस HCl सॉल्यूशन मतलब सब्सटेंस ही सेम था बेटा, बट यहाँ पर अब सब्सटेंस सेम नहीं है परंतु वो जो उनके आयन्स हैं वो सेम है। जैसे अब मुझे पता है कि NaCl है, जैसे ही मैंने NaCl को पानी में डाला तो ये NaCl किस किस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। इफ यू आर डिजोल्विंग MgCl2 इन वाटर तो ये किस किस में टूट जाएगा, Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस। और अगर आप AlCl3 को पानी में डाल रहे हो तो ये Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस। ठीक है ना, तो अगर सब्सटेंस सेम नहीं होगा तो फाइनल मोलरिटी उसकी पूछी जाएगी जो सभी में क्या है बेटा, कॉमन है। अब यहाँ पर कॉमन आयन कौन सा है मेरा, Cl माइनस, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस उसका जब भी बोला जाता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cl माइनस लिख दो, इसका मतलब ही होता है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब कंसंट्रेशन की तो खूब सारी यूनिट है, जब तक कुछ नहीं बोला जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हमेशा मोलरिटी होती है। तो जब भी आपसे कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इस तरह से बोला जाए तो आपको बस अपने सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, Cl माइनस। टेक्निक वही लगेगी M1V1, चूंकि 3 सॉल्यूशन M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, तो 300.2 इंटू 300, ठीक है ना, प्लस 0.3 इंटू 500 एंड प्लस 0.3 इंटू 800 डिवाइडेड बाय, यही करा है आपने, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना 1600 रखा है जो गलत है। मैंने आपसे क्या बोला कि वॉल्यूम किस तरह की प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। वाटर का यूज क्या है यहाँ पर, वाटर भले Cl माइनस मोल्स प्रोड्यूस न कर रहा हो बट एटलीस्ट ये वॉल्यूम में तो रोल प्ले करेगा अपना। तो सबसे पहली चीज आपका कि आपने वॉल्यूम में गड़बड़ करी तो नीचे तो 3600 आएगा आपका, गॉट द आइडिया। दूसरी गड़बड़ी और क्या करी आपने वो देखो कि जब भी इस तरह से सब्सटेंस होगा बेटा, ठीक है ना,
NaCl का 1 मोल, Cl माइनस के भी कितने, ये M इंटू वी जब आप करते हो, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स हैं ये, NaCl के। अब ये दोनों किस रेशो में बेटा, 1:1। तो अगर इसके इतने मोल्स हैं तो Na प्लस के भी इतने ही होंगे, Cl माइनस के भी इतने ही होंगे, ठीक है। MgCl2 की बात करूं तो 0.3 इंटू 500, ये किसके मोल्स हैं, MgCl2। तो Mg प्लस 2 के कितने होंगे, सेम। Cl माइनस के कितने होंगे, हैं, दुगने हो जाएंगे। तो वो भी आपने नहीं करा है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर आयन की बात हो बेटा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट आपको उसका कोफिशिएंट देखना है, और ये तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कोफिशिएंट तो यही दिख रहा है, Cl के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1, Cl के नीचे 2, तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना। नॉर्मली स्टूडेंट आयन वाले केस में खूब गड़बड़ करता है। AlCl3 कितना लिखा हुआ है, 3, तो इस नंबर को आपको मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 भी। आ रही मेरी बात समझ में? तो दैट इज द मिस्टेक, आपने 2 जगह मिस्टेक करी थी, वाटर का वॉल्यूम भी नहीं ऐड करा था, ये भी ध्यान नहीं दिया। तो आयन के क्वेश्चंस में अब क्लियर कर लोगे, अब कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा सभी को, इस वजह से मैंने आयन का भी एक क्वेश्चन करा दिया है। तो नाउ इट इज 60 प्लस 150 इंटू 2 दैट इज 300 प्लस, है ना, 240 इंटू 3 दैट इज 720 अपॉन 3600, तो इट इज 780 दैट इज 1180 अपॉन 3600। ओके, सो दिस इज योर फाइनल मोलरिटी ऑफ Cl माइनस। अब आपके पास इसके अलावा और कौन कौन से आयन्स हैं सॉल्यूशन में, आयन्स और कौन कौन है Cl माइनस के अलावा, है ना। Cl माइनस मतलब एनायन, एनायन तो एक ही है। केटायन कितने हैं आपके पास, 3, कौन कौन से, Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपको और दे रहा हूं कि ऑल्सो कैलकुलेट concentration of each cation in the solution. Also calculate concentration of each cation in the solution. ठीक है ना। तो इसको भी देख लो बेटा। पहला केटायन मैं ले रहा हूं, कौन सा आपका, अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि कंसंट्रेशन के लिए आप बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख दो। तो पहले मैं कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस पे जाऊं, ठीक है ना। तो Na प्लस का कंसंट्रेशन मतलब वापस मोलरिटी, नीचे तो क्या आएगा बेटा 3600, क्योंकि वॉल्यूम सबके लिए कितना हो चुका है 3600। ऊपर क्या आएंगे इसके मोल्स, और Na प्लस केवल किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, NaCl, मतलब ऊपर केवल 0.2 इंटू 300, है ना। ये इनमें तो ऐड हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि Cl माइनस 3 वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, इनमें एडिशन नहीं होगा। तो इट इज सिंपली 60 बाय कितना 3600 दैट इज 1/60, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपसे बोल रहा है Mg प्लस 2 का कंसंट्रेशन, तो नीचे तो वापस कितना आएगा आपका, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, केवल इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और 1:1 के रेशियो में है, तो इट इज सिंपली 0.3 इंटू 500, सो इट इज 150 अपॉन 3600। एंड इन द सिमिलर वे अगर वो आपसे Al प्लस 3 के कंसंट्रेशन की बात करता है, तो वापस 1:1 है, तो ऊपर आपका 0.3 इंटू 800 और नीचे उसका 3600। वॉल्यूम सभी के लिए क्या रहेगा बेटा, सेम, जो कॉमन है वो ऐड होता जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनली इट इज 240 अपॉन 3600, है ना। आर यू गेटिंग द आइडिया, है ना। तो ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे जब वो सॉल्ट ऐसे देगा जिनमें केटायन और एनायन हो, अलग अलग कंसंट्रेशन पूछ सकता है। कॉमन के लिए बी केयरफुल कि आपको उनके कोफिशिएंट से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और जो कॉमन नहीं है वो सिंपल इस टेक्निक से हो जाएगा हमारा, है ना। तो नाउ आई एम फिनिशिंग दिस चैप्टर, चलो एक दो और कर लो, नेक्स्ट चलो एक और लिख लो। हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 molar BaOH whole twice solution should be mixed with 400 ml of 0.3 molar NaOH solution, है ना, such that
such that, है ना, final concentration of OH minus, such that final concentration of OH minus is 0.6 molar. Such that final concentration of OH minus is 0.6 molar. वेरी गुड, ठीक है, कर ले रहो आप बस। क्या है, एक सॉल्यूशन क्या दिया मैंने आपको, BOH होल ट्वाइस, और दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया मैंने आपको, NaOH, है ना। इसकी मोलरिटी 0.5 है और वॉल्यूम इसका अननोन है, और इसका आपको मोलरिटी दिया गया है 0.3 मोलर एंड वॉल्यूम इज कितना, 400। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया भैया, तो दोनों में कॉमन है, मुझे क्या दिख रहा है, OH माइनस, ठीक है ना। सो अननोन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, व्हाट विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इट इज, है ना, 0.5 इंटू V मोलरिटी इंटू वॉल्यूम एंड द कोफिशिएंट ऑफ OH माइनस विच इज 2 प्लस 0.3 इंटू 400 एंड डिवाइडेड बाय V प्लस 400, है ना। अभी तक क्या फाइनल मोलरिटी निकाल रहे थे बेटा, अब मैंने आपको फाइनल मोलरिटी दे दी है और वॉल्यूम अननोन कर दिया है, तो वी हैव गिवन द फाइनल मोलरिटी इज हाउ मच, 0.6। ऊपर से सॉल्व करता हूँ तो 2 इंटू 0.5 मतलब 1, तो V प्लस 120 अपॉन V प्लस 400। अगर इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 0.6V प्लस 240 इक्वल्स टू V प्लस 120। 240 को इधर ले आऊं, 120 को, तो 240 माइनस 120 इज 120। 0.6V उधर गया तो V माइनस 0.6V मतलब, ठीक है ना, कितना, 0.4V। सो V विल बी इक्वल्स टू 1200 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ml, 300 ml। कर लोगे अब तो, नहीं बस काफी है, शीट में अब यही करना है बस। अब मैं बस नहीं, इस टॉपिक की नहीं करवा रहा हूँ ना, बाकी तो कराऊंगा। बताओ, है ना। So now we are discussing DPP number 4, 5 and 6. So now we are discussing DPP 4, 5 and 6. In fact, it should be 5, 6 and 7. क्योंकि मुझे लग रहा है फर्स्ट वीक में आपको दो DPP दी थी ना। हाँ, अच्छा ये सेकेंड वीक ही था हमारा। हाँ ओके, हाँ बताओ, है ना। DPP 4 फर्स्ट प्रॉब्लम, एन एलिमेंट A एटॉमिक वेट गिवन है, एलिमेंट B एटॉमिक वेट गिवन है, द कंपाउंड कंटेंट 75% A बाय वेट, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, ठीक है ना। अब सिंपली क्या करना है बेटा, आपको किसी एक एलिमेंट का क्या गिवन है बेटा, परसेंट गिवन है A का, तो A का अगर 75% है तो B का डेफिनेटली कितना परसेंट होगा, 25। अगर परसेंट गिवन है तो फॉर्मूला निकालने की क्या टेक्निक थी, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसके लिए क्या करते थे, गिवन परसेंट को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते थे। तो 75/75 मतलब 1, और इधर 25/25 मतलब 1, तो दैट मीन दोनों किस रेशो में, 1:1, तो आंसर विल बी AB। नहीं, चलो, और इसके अलावा फर्स्ट के बाद हाँ, सिक्स, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वी हैव डिस्कस्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था हम लोगों ने, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ना। एक और लॉ होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन,
है ना। तो देयर इज वन, वो सब गैसियस स्टेट में आएगा, इस चैप्टर का पार्ट नहीं। तो एक और लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ नहीं, चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होता है, ठीक है ना, 3 एलिमेंट होते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट एलिमेंट। सबसे पहली कंडीशन आपको ये देखनी है। अब आप फर्स्ट ऑप्शन में देख लो कि देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, कौन कौन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सेकंड में देखोगे तो 3 डिफरेंट एलिमेंट की जगह कितने डिफरेंट एलिमेंट हो गए, 4, ठीक है ना। थर्ड में अगर आप देखोगे तो क्या है, CH2, CO2 और SO2, 3 डिफरेंट एलिमेंट है। फोर्थ ऑप्शन में देखोगे तो 3 डिफरेंट एलिमेंट है, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहली चीज, जब भी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का आपसे लॉ पूछे तो पहली कंडीशन कि देयर शुड बी 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ऑप्शन ए और बी हट गए। अब बचे केवल कौन सा ऑप्शन मेरे, COD। और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास A, B और C, ठीक है ना। A और B आपस में जिस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, B और C आपस में जिस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, किसी एक एलिमेंट को कॉमन कर दो, B का जो फिक्स वेट A के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और B का जो फिक्स वेट C के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, वो जब B और C, है ना, आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो हमेशा एक किस में होंगे, आपका सिंपल रेशियो में होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले तो 3 एलिमेंट देखने थे मुझे। अब 3 एलिमेंट से COD हो गया, बट उन 3 एलिमेंट में भी ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, जैसे थर्ड ऑप्शन में अगर मैं देखूं 3 एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, कि अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO2। ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो SO2। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में कंबाइन करें, C और S, उनसे भी एक कंपाउंड बनना चाहिए। तो उनसे कंपाउंड कौन सा बन रहा है, CH2। तो यही ऑप्शन क्या होगा मेरा, मैच कर रहा है, क्योंकि डी ऑप्शन में तो तीसरा नया एलिमेंट कौन सा आ चुका है मेरा, हाइड्रोजन आ चुका है। हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड नहीं, तो आप केवल देख के डायरेक्टली टिक कर सकते हो। पहले तो 3 होने चाहिए और फिर हाँ, आपस में तीनों के कंपाउंड होने चाहिए। अगर ABC ले रहे हो तो A और B का भी कंपाउंड होना चाहिए, B और C का भी होना चाहिए और A और C का भी होना चाहिए। ठीक है, चलो और कौन सा, फिर इसमें 12 ही है ना? क्या 12 ही है, क्वेश्चन DPB इसमें 5 में 4 में 8 है, हाँ 5 में 12, हाँ बताओ 5 में, सर 5 हो गई, पूरी हो गई कंप्लीट, 6 का सेकंड आंसर दिया ही हुआ है ना इसमें। हाँ चलो, का सेकंड 5 कंप्लीट पूरी, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। चलो 6 का सेकंड। DPP 6 क्वेश्चन नंबर 2। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस ए जिसका मोलर मास B है और गैस B जिसका मोलर मास 80 है इज 25, है ना। सबसे पहली बात तो भैया देखो, है ना, वेपर डेंसिटी अगर मिक्सचर वाली होती है तो आपको याद होगा, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर मिक्सचर इट इज एवरेज मोलर मास बाय 2, ठीक है। तो अगर आपको वेपर डेंसिटी 25 गिवन है, दैट मीन आपके मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास हो गया वो 2 × 25 विच इज 50। अब अगर आपको एवरेज मोलर मास का रूल याद हो, एक गैस का मोलर मास 40 है और एक का कितना है 80। तो जैसे अभी मैंने मोलरिटी में आपको इस मिक्सिंग में शॉर्टकट बताया था, मैं ऑलरेडी इसमें भी बता चुका हूं कि ये हमेशा मिलाए जाने वाली गैसेस के बीच में होगा, ठीक है। अब आपको परसेंटेज ऑफ गैस B, मतलब इसका परसेंट बताना है, तो फिर शायद मुझे लगता है आप मेरी टेक्निक भूल गए हो। मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया था, नीचे दोनों का डिफरेंस रहेगा, मतलब 80 - 40 दैट इज 40। और अगर B का निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 10 × 100, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 25%। है ना, शॉर्ट टेक्निक जितनी लगाओगे उतना प्रॉब्लम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। आफ्टर सेकेंड खत्म हो चुका चैप्टर, बस सिग्निफिकेंट फिगर मुझे पढ़ाना थोड़ा सा, आधे घंटे का। हाँ बस, नहीं अभी पढ़ाऊंगा, ये DPP डिस्कस होने का, अब शीट इकट्ठे कल पूरी कर लूंगा। हाँ फिफ्थ और 6।
फिफ्थ में बोल रहा मास ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस बाय 84 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 56। बस आपको अगेन अ गुड क्वेश्चन, सी सॉलिड प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस, है ना, ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, C12H22O11। सिंपल क्वेश्चन है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, जो गिवन नहीं है यहाँ पर। C12 है तो 12 सॉलिड, H22 है तो 11, यह 3 एलिमेंट है, इसमें क्या दिक्कत आ गई, ये 12 तो 12 कर दो, 22 है, 2 ऑलरेडी है तो 11 कर दो, और ये 11 है तो 11/2। इसमें कौन से बैलेंस करने में दिक्कत आ गई, ठीक है ना। अब 84 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब 84/12 हो गया 7 मोल्स, ठीक है ना। 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब 12/2 हो गया 6 मोल, और 56 लीटर ऑफ O2 एट 1 atm एंड 273 केल्विन, है ना। अब आप देख सकते हो 1 atm और 273 केल्विन STP ही होता है, उसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दिया ताकि बच्चा यहीं पर गड़बड़ कर दे, ठीक है ना। तो इस 56 को आपको डिवाइड करना है किससे, 22.4 से, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5/2, ठीक। अब बात आ रही कि भैया इसका मास बताना है, और ऑलरेडी मैं आपको रूल बता चुका हूं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्सटेंस है जिनका अमाउंट गिवन है, सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको लिमिटिंग रीजन, क्योंकि वो इसका अमाउंट डिसाइड करेगा। और लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने का सिंपल तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 7 को डिवाइड कर दो 12 से, 6 को डिवाइड कर दो 11 से, और 5/2 को डिवाइड कर दो 11/2 से, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर अगर आप 7/12 देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली ये तो 0.6 होगा, है ना। 6/11 लगभग 0.5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें 2/11 तो 5/11 लगभग 0.4 के अप्रोक्सीमेटली। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज व्हाट, O2। अब इसके लिए O2 अगर LR डिसाइड हो गया तो O2 ही इसका अमाउंट डिसाइड करेगा। तरीका भी मैं बता चुका था, ऊपर इसका कोफिशिएंट 1, नीचे उसका जो जिससे निकालने हाँ, के लिए का तो कोफिशिएंट क्या 11/2 11/2 और इनटू इसके मोल्स, ठीक है। तो ये 2 और 2 तो क्या हो गया आपका कैंसर, इट इज 5/11, और सुक्रोज का मोलर मास होता है 342, ठीक है ना। तो 11 से अगर आप करोगे तो 11 3 जा 32, बचा 1, तो अप्रोक्सीमेटली 12 मतलब 1 ही ले लो, तो 31 5 जा कितना हो जाएगा मेरा 165, है ना। मतलब अप्रोक्सीमेटली अवर आंसर शुड बी बी। फिर 155 हो गया। हाँ वही 31 5 जा 155, तो सर है ना। आपने मेरे को 4 बताया था। क्या 4 बताया, 4 वाला क्वेश्चन बताया, नहीं ये 5 है, 6 भी बताया। है ना। 6 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये 40 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ऑफ एन एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। अगर वो एल्कली मेटल बोल रहा है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, और अगर वो एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहा है तो बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। पहले तो ये चीज फिक्स हो गई, ठीक है ना। अगर आपको याद है ये, है ना, इनको याद रखने का तरीका है, हेलिना की रब से फरियाद, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट H आता है, तो H मतलब हा हो गया, है ली ना की रब से, फ्रेंशियम मतलब Fr। उन दोनों को लेते हैं इसलिए नहीं क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है और हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है। इधर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना, अगला वाला, ठीक है। तो इनमें से कोई एक होगा, इसलिए आप नीचे आंसर देख सकते हो कि 2 ऑप्शन में बेरिलियम गिवन है आपको, एक ऑप्शन में लिथियम गिवन है, और एक ऑप्शन में क्या गिवन है आपका, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो 40 ग्राम में कंटेनिंग सम इनर्ट इम्प्योरिटीज, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इम्प्योरिटीज जो होती है वो हमेशा इनर्ट ही होती हैं, है ना। वॉज मेड टू रिएक्ट विथ एक्सेस HCl सॉल्यूशन, है ना। कार्बोनेट जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो जो रिएक्शन होती है वो आपका CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बोनेट होता है किस नेचर का, बेसिक नेचर का, HCl होता है किस नेचर का, एसिडिक। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, CO2 प्लस H2O प्लस 2Cl-, ठीक है ना। तो हमें बोला गया है कि जो CO2 लिबरेट हो रही है वो ऑक्यूपाई कर रही है 12.315 लीटर एट 1 atm एंड रिएक्शन में सॉल्ट कौन
किसमें? सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? अपन का है बेस प्लस सॉल्ट। हाँ, तो अभी सॉल्ट इस पे डिसाइड करेगा ना कि कौन सा है। मान लीजिए वो BeCO3 होता, सपोज करो, तो BeCO3 होता है तो प्लस 2HCl। अगर मैंने यहाँ B ले लिया है तो B अब किसके साथ जुड़ेगा जाके? Cl के साथ, तो सॉल्ट BCl2 बनेगा प्लस H2O प्लस CO2, इस तरीके से। तो अभी मुझे ये पता नहीं ना कि इनमें से कौन सा कार्बोनेट है, कोई भी हो सकता ना। दैट्स व्हाई मैंने कार्बोनेट को कार्बोनेट के फॉर्म में लिखा और इससे आयन के फॉर्म में छोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो चुकी है कि जो लिबरेटेड CO2 है इसके लिए आपको दिया गया है 12.315 लीटर 1 ATM पर तो है, बट टेम्परेचर उसने 300 केल्विन दे दिया है ना। तो अभी मुझे 300 केल्विन पर पता नहीं है, इसके लिए मेरी आइडियल गैस इक्वेशन मुझे यूज करनी पड़ेगी, कौन सी? PV = nRT, ठीक है ना। हाँ, तो अगर अभी आपको है ना ये इक्वेशन हो सकता है आपके लिए नहीं हो, क्वेश्चन बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। 1 इंटू वॉल्यूम 12.315 इक्वल्स टू N अपॉन R, कांस्टेंट होता है वो है 0.0821 और टेम्परेचर आपका कितना? 300। सर ये आर की वैल्यू 0.0821 ये गिवन होगी प्रॉब्लम में आपको। तो अगर आपको n इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज 24.63। इस वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने 12.315 दिया है, क्योंकि 24.63 का अगर आप हाफ करते हो तो एग्जैक्टली वो 12.315 ही आएगा। तो दैट मीन यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके पास? हाफ मोल। अगर CO2 के हाफ मोल है मेरे पास तो कार्बोनेट के भी कितने मोल होने चाहिए? हाफ मोल ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब जो नीचे ऑप्शन दिए हुए ना, ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल का काफी बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शन दिए गए, देखो पहला, अगर बेरियम का कार्बोनेट होता तो BeCO3 होता, इसका मोलर मास कितना होता? बेरियम का कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 9, ठीक है ना। और कार्बोनेट का कितना? 69। तो अगर हाफ मोल है बेटा आपके पास तो इसका वेट कितना होता? 69/2 मतलब 34.5। तो इम्प्योरिटी कितने ग्राम होनी चाहिए थी? अगर इसका वेट 34.5 आ गया है, क्वेश्चन में गिवन है 40 ग्राम है कार्बोनेट के, तो इसका वेट 34.5 है, बाकी बची हुई क्या होती? तो इम्प्योरिटी का वेट होना चाहिए था 5.5। 40 में से माइनस कर दूं, बट फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि इम्प्योरिटी केवल 1 ग्राम है। तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं, गलत। अब अगर सेकंड ऑप्शन में जाते हो लिथियम वाला, है ना, तो ये इसके बाद हिट एंड ट्रायल की तरह ट्रीट करना है। Li2CO3 लिथियम का कार्बोनेट ये होता, ठीक है ना। तो Li2CO3 का अगर मैं मोलर मास देखता हूं, 2 लिथियम मतलब 14 और कार्बोनेट 60, तो ये हो जाएगा 74। चूंकि हाफ मोल है तो इसलिए जो मास होगा 74/2 मतलब कितना? 37। और अगर इसका 37 है तो 40 में से माइनस कर दूं तो इम्प्योरिटी 3। सेकंड ऑप्शन में यही गिवन है कि मास ऑफ इम्प्योरिटी 3 ग्राम और मेटल इज लिथियम, मतलब ये दोनों डाटा क्या कर रहे हैं? मेरा मैच कर रहे हैं। दैट्स व्हाई माय ऑप्शन इज बी। तो इस वजह से ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है इस DPP का। जेई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? दिए हुए बेटा हर शीट में आपको जेई की एक्सरसाइज मिलेगी। हाँ, वो जो शीट में 2 पार्ट दिए गए, पहला पार्ट IIT का ही तो है, दूसरा AI EEE। बट सर वो तो मतलब जैसे नहीं कहते ना, बहुत ही ज्यादा हार्ड आता है IIT। नहीं, तो इसमें आपके जो क्वेश्चन दिए गए वो 2000 के बाद के दिए गए, पिछले 10 सालों के दे रहे हैं हम क्वेश्चन आपको। तो 2001 या 2 के बाद है, तब से पेपर इजी हो गया। पेपर का टफ लेवल आखिरी टाइम था 97 में, जिस साल मैंने जेई निकाली थी। उसके बाद से 98 से धीरे धीरे करके पेपर का लेवल उसने इजी कर दिया, और अब तो काफी इजी कर दिया है। इस बार उम्मीद है कि अब पेपर का लेवल फिर से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब वो सिलेक्ट कर चुका है केवल वो बंदे जो IIT में जाना चाहते हैं। 1.5 लाख सिलेक्ट कर लिया ना मेन से, तो इस वजह से उम्मीद है कि पेपर का लेवल अच्छा होगा।
चलो और कोई इसमें जल्दी बताओ। 8 और 9 भी है ना। इस डीपीपी के लगभग सभी क्वेश्चन बढ़िया है, सभी टोटल 1 से लेकर पूरा 10 तक, ठीक है ना। स्पेशली ज्यादा बढ़िया जो आपने 5 पूछा था वो, 6 जो पूछ रहे हो, 8 जो पूछ रहे हो और 9 जो पूछ रहे हो, सब बढ़िया है ना। अब जैसे 8 को देखें है ना, ये आपको रिएक्शन गिवन। 8 इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। 5A2 plus 2B4, they both are reacting with each other and forming 2AB2 plus 4A2B, है ना। देखो इन क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी क्रॉस चेक करना पड़ा था आपको, इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या दी है उसने कि A का एटॉमिक मास 10 है। अब A का एटॉमिक मास 10 मतलब मोलर मास कितना हो गया A2 का 20, B का एटॉमिक मास है 120, तो इसका मोलर मास 120 इंटू 4 मतलब 480 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन है कि द मिनिमम मास ऑफ मिक्सचर ऑफ A2 एंड B4, इसका कितना मिनिमम मास आप ले लो इस मिक्सचर का, है ना, टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 kg ऑफ इच प्रोडक्ट, है ना। दोनों का कम से कम 1 किलो बन जाना चाहिए, इसका भी 1 किलो और उसका भी 1 किलो, ठीक है ना। अब अगर मैं इनका मोलर मास देखूं, पहले वाले का AB2 का मोलर मास 1A मतलब 10, 2B मतलब 240, तो इसका मोलर मास कितना हो गया बेटा 240, और सेट है 250, हाँ वही तो लिखा मैंने, बोला शायद 240 था ना, हाँ। सेकंड का देखूं 4A मतलब 40 प्लस 1B मतलब 120, तो 160, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे एटलीस्ट 1 kg बनाना है, पहले मैं इसको देखूं, अगर इसका 1000 ग्राम 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, तो अगर मुझे इसके 1000 ग्राम बनाने हैं तो दैट है अच्छा, हाँ ठीक है ना, तो ये 140 सही, ठीक है। तो अगर मैं इसका मान लो इसका 1 kg बन रहा है, तो 1 kg बनने का मतलब इसके कितने मोल बनेंगे 100,000 बाय 240 मतलब 4, और अगर इसके 4 मोल बने तो कायदे से इसके कितने मोल बनने चाहिए 8 मोल, क्योंकि दोनों किस रेशो में 2:4, ठीक है ना। तो 1:2 के रेशो में, तो इसके 4 मोल मतलब इसके कितने मोल बन जाने चाहिए बेटा 8, और अगर इसके 8 मोल बन रहे हैं तो 8 इंटू इसका मोलर मास कितना है 140, तो 0, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, कितने ग्राम 1120 ग्राम। मतलब अगर इसका 1 kg बन रहा है कम से कम, तो इसका तो 1 kg बन ही रहा है, आ रही मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब अगर इसका 1 kg बन गया, ठीक है, तो इसका 1 kg अपने आप बन जाना चाहिए। उसके लिए मुझे इसके कितने मोल चाहिए बेटा 4 मोल। आ गया मेरा कॉन्सेप्ट समझ में। इसका 1 kg बन रहा है, इसका 1 kg बना, तो इसका 1 kg से ज्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसने कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में, एटलीस्ट 1 kg दोनों प्रोडक्ट का बनना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या है कम से कम, मैंने एक को तो कम से कम रखा, दूसरा उससे कैलकुलेट करा, अगर दूसरा 1 kg से ज्यादा है तो ये सही है, अगर कम होता 1 kg से तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट नहीं होता, तब मुझे रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ता, मतलब पहले मैं A2B के मोल्स निकालता और उससे फिर इसके मोल्स निकालता। आर यू गेटिंग माय कॉन्सेप्ट। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एटलीस्ट 1 kg बनना था, हाँ एक को ले लिया, दूसरे का उससे अमाउंट निकाला। अगर ये 1 kg से कम आता मतलब ये गलत था, फिर उल्टा करते। उल्टा करने का मतलब पहले आप इसके मोल्स निकालते, इसको 1000 लेते और फिर उससे इसका मास निकालते। अगर वो 1000 से ज्यादा आ जाता तो सेकंड ऑप्शन सही होता, बट अभी फर्स्ट ऑप्शन में ही मेरा सही हो गया। दैट मीन अगर इसके 4 मोल बन जाते हैं तो मेरी कंडीशन क्या हो गई बेटा सेटिस्फाई। अगर इसके 4 मोल बनने हैं तो B4 के कितने मोल होने चाहिए 4, क्योंकि दोनों सेम रेशो में है। तो B4 के 4 मोल मतलब 4 इंटू कितना बेटा 480, तो 0, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, और इसके 2 मोल हैं तो A2 के कितने मोल होने चाहिए 5/2 इंटू 4 बेटा, ठीक है, इंटू इसके मोल्स आएंगे ना। तो 5/2 इंटू 4 मतलब 10, और इसके 10 मोल्स तो 20 इंटू 10 कितना 200, तो दैट्स वाई 200 प्लस 19 20, आंसर इज 2120A। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। अगेन ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
और कौन सा बोल रहा हूँ? 9th है ना, 9th इस सेम क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का डाटा अलग था, मेंस 2000 क्या इसी टाइप का नहीं, इस टाइप का नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ मेंस में आया था इस साल 2013 में। इस साल जो अभी जेई हुई है ना 7 अप्रैल को, उसमें एक क्वेश्चन तो अभी करवा दिया मैंने आपको, एक क्वेश्चन ये 9th टाइप का हाइड्रोकार्बन के ऊपर था। 74 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 132 ग्राम ऑफ CO2 एंड 54 ग्राम ऑफ H2। देखो आप किसी भी कंपाउंड को कार्बन के जलाओगे बेटा, है ना, कार्बन हाइड्रोजन के, तो हमेशा आपको क्या मिलना है? CO2 और H2 मिलना है, ठीक है ना। अब उसने बोला है 132 ग्राम ऑफ CO2, तो आप 132 को 44 से डिवाइड कर दो, मतलब 3 मोल, और 54 ग्राम ऑफ H2O, तो 54 बाय 18 मतलब 3 मोल, है ना। अगर CO2 के 3 मोल है तो कार्बन के भी कितने मोल होने चाहिए? 3, क्योंकि 1:1 के रेशियो में, और H2O के 3 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? 6। H2 का कोएफिशिएंट 2 है ना, तो आपके पास कंपाउंड में 3 कार्बन होने चाहिए बेटा, और 6 क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। अब इस ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो तो ऐसा ऑप्शन आपके पास केवल एक ही है, C3H6O2, ठीक है ना। नीचे फर्स्ट ऑप्शन में 5 कार्बन है, सेकंड में 4 है, थर्ड में आपके पास 7 हाइड्रोजन है, ये हो गया, ठीक है ना। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप इसका मोलर मास चेक कर सकते हो। 12 3 36 प्लस हाइड्रोजन का 6 प्लस 2 ऑक्सीजन मतलब 32, 36 प्लस 3 42 प्लस 32 मतलब 74, और उसने 74 ग्राम ही दिया है, मतलब इसका 1 मोल है और ये जल के बना रहा है। अगर अपन ऐसे करें कि मान लो C3 सबके अपन चेक कर लें, किसके? मोलर मास। हाँ सबके मतलब एक एक चेक कर ले, तो हाँ। 74 तो ओनली 8 में ही आ रहा है, हाँ तो वो आंसर भी नहीं, तो ये हाँ वो भी कर सकते थे बेटा, बट इसमें अगर मैं जैसे प्रॉब्लम फ्रेम करता, अभी तो मैंने किसी बुक से ले ली थी, तो मैं ये भी कर सकता था ना कि मोलर मास में 2 के सेम रख देता, ठीक है ना। मोलर मास मान लीजिए 1 का 40 आ रहा है और मैं आपको देता 80 ग्राम, तब उसके कितने मोल हो जाते? 2 मोल। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग भी तो चेक करना पड़ता। आर यू गेटिंग माई आइडिया? अभी तो आप ये मान के चल रहे हो कि सबका इसका 1 ही मोल है, अब इसके 2 मोल होते तो तब तो इधर फिर चेक करना पड़ता ना क्रॉस में, ठीक है। चलो, तो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ DPP 4, 5, 6, है ना। टुमारो वी विल डिस्कस कंप्लीट एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3, ओके। सो लास्ट टॉपिक द रिलेटिवली, है ना, इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, मतलब बट स्टिल यू हैव आइडिया, और भी करे दूंगा, है। और भी कर दूंगा इसके। हाँ, सब कल मैं पूरा खत्म करके बाहर निकलूंगा। Our last topic, which is nowadays very much important because the new pattern of IIT JEE includes experimental technology in the exams, है ना। They are including the various experiment and during doing experiments in the laboratory, ठीक है ना, the significant figures are required, है ना। First of all, I have to understand the meaning of significant figure. What is the meaning of significant figure? है ना, द फिगर्स इन एनी नंबर विच हैव सिग्निफिकेंस, जिनका क्या है आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कराते हो, जैसे सपोज यू हैव दिस पेज, अगर मैं आपको इस पेज की लेंथ मेजर करने को दूं, ठीक है, आपने इसकी लेंथ मेजर करी, ठीक है ना, हो सकता है आपने इसकी लेंथ मेजर करी 40.5 सेंटीमीटर, ओके। किसी दूसरे स्टूडेंट को दिया तो उसने हो सकता है बेटा 40 सेंटीमीटर, तो उसके लिए भी क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, बट 0.5 सेंटीमीटर हो सकता है उसने 0.5 की जगह 0.6 लिया हो, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, हो सकता है 2 लाइनों के बीच में आया आपका। अब 2 लाइनों, ये 5 वाली लाइन है, 6 वाली, हो सकता है यहाँ आ रहा है। यहाँ आने का मतलब स्केल देखी होगी ना आपने, स्केल की बात करो तो अगर यहाँ आने का मतलब है, हो सकता है आपने इसे 40.5 ले लिया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने इसे कितना ले लिया? 40.6। कोई मना तो नहीं कर सकता उसे भी बेटा, आपने भी अप्रोक्सीमेट करा है और उसने भी अप्रोक्सीमेट करा है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ही है बेटा कि हर एक्सपेरिमेंट में जो आप लेते हो ना, जैसे 40.5 है, इसमें 40 वाला डिजिट तो क्या है? सर्टेन है, फिक्स है, क्योंकि मैं किसी तीसरे स्टूडेंट को भी दूंगा तो वो इतनी ज्यादा एरर नहीं करेगा कि 40 का सीधा 30 कर दे, 40 तो सेम रहेगी उसकी। हो सकता है थोड़ा मेजरमेंट में गड़बड़ कर दे तो उसका
प्लेस अगला चेंज हो सकता है कि वो 40 के बाद 0.4 ले ले या 0.7 ले ले। आ रही मेरी बात समझ में? तो हर डिजिट में कुछ पार्ट क्या होता है आपका सर्टेन होता है और कुछ पार्ट क्या होता है आपका अनसर्टेन होता है, ठीक है ना। उस अनसर्टेनिटी को हम लोग अवॉइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। तो पहले बस थोड़ा सा लिख लेना थ्योरी। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट the uncertainty in the experiment or calculated value, ना किसी भी एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी या जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है is indicated by mentioning the number of significant figures। आप एसएफ लिख लेना शॉर्टकट में, है ना। इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ एसएफ, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस। आगे लिखना बेटा, एसएफ आर मीनिंगफुल डिजिट्स। कि एसएफ का मतलब क्या है? एसएफ आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। एसएफ आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। वो मीनिंगफुल डिजिट जिनको आप सर्टेनिटी से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट चीज वो लिखना बेटा, द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स है ना एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, है ना। तो दैट्स व्हाई जस्ट नाउ आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि अगर मैं किसी पेज की लेंथ मेजर करने को दे रहा हूं तो हो सकता है कोई स्टूडेंट 45 पॉइंट ले, कोई 40.6 ले ले, कोई 40 पॉइंट क्या ले ले आपका 7, ठीक है ना। उसका ये पार्ट तो क्या है बेटा सर्टेन है। 40 इतनी ज्यादा एरर कोई स्टूडेंट नहीं करेगा कि 40 को सीधे 39 कर दे। एरर हमेशा कौन से डिजिट में आती है आपकी? लास्ट डिजिट में, है ना। एरर जो भी आनी है वो हमेशा किस में आनी है आपकी? लास्ट डिजिट में ही आनी। जैसे 40.54 है, हाँ तो 54 को 45 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ना, वही कह रहा हूँ ना कि अच्छा आप 2 डिजिट कह रहे हो, इसको तो फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना बेटा। मुझे वो बता देगा कि मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अगर वो बोल दे रहा है कि आपने बोला 40.54, ठीक है ना। अगर वो बोल दे रहा है कि हर स्टूडेंट को कि गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको ये लास्ट वाला फिगर क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंडिंग ऑफ के रूल है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हर स्टूडेंट को फिर डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें कोई अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती बेटा। अनसर्टेनिटी हमेशा किसमें होगी? आपकी लास्ट डिजिट में। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। ये सर्टेन डिजिट है, लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट है। जैसे एक एग्जांपल डाल लेना कि इफ आवर रिजल्ट इज 11.2 ml, if our result is 11.2 ml, then we can say 11 is certain and 2 is uncertain. If our result is 11.2 ml, then we can say 11 is certain and 2 is uncertain. And the uncertainty would be plus minus 1, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है, द अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस माइनस 1, ठीक है। अगर आप लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो बेटा, आपको वॉल्यूम 11.2 ml मिला, ठीक है ना। तो 11 उसमें क्या है आपका सर्टेन है, 2 क्या है आपका अनसर्टेन। वो लास्ट डिजिट में हमेशा प्लस माइनस 1, मतलब ये मेरा 11.1 भी हो सकता था, ये मेरा 11.3 भी हो सकता था। दैट्स वाई प्लस माइनस 1 हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लेना बेटा कि अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, uncertainty of plus minus 1 in the last digit, unless otherwise mentioned, uncertainty of plus minus 1
in the last digit is always understood. Uncertainty of plus minus 1 in the last digit is always understood. ठीक है, मीनिंग आ गया समझ में, है ना, कि आप एक्सपेरिमेंट जब करा रहे हो उनकी एरर्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग उसमें हमेशा कुछ सर्टेन डिजिट होंगे और कुछ क्या होंगे, अनसर्टेन, और अनसर्टेन वाला हमेशा कौन सा डिजिट होगा, लास्ट वाला, और उसमें हमेशा प्लस माइनस 1 की हम लोग एरर लेके चलेंगे, है ना। अब लिख लो हमारा रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एसएफ। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एसएफ, किसी में नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उनकी नंबर कितनी है बेटा, उनको डिटरमाइन करने के रूल्स। देयर आर 5 सिंपल रूल्स। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। व्हाट इज द मीनिंग, कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपका 285 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सभी डिजिट क्या है बेटा, नॉन जीरो। तो अगर मैं इसमें आपसे बोलूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 24.6 ml है, इसमें मैं आपसे पूछूं सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो अगेन आप कितना बोलोगे, 3। तो फर्स्ट रूल है कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ओके, सेकेंड रूल लिखना बेटा हमारा, जीरोस preceding to the, zeros preceding to the first non-zero digit, zeros preceding to the first non-zero digit are not significant. Zeros preceding to the first non-zero digit are not significant, and such zero indicates the position of decimal point. Such zero indicates the position of decimal point. ठीक है, क्या मीनिंग है बेटा, है ना। ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल का क्या मीनिंग है, जैसे अगर किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपका 0.03 है ना, कायदे से ऐसे 0.03 कभी नहीं लिखा जाता, इसे लिखने का सही तरीका है 0.03। सेकेंड रूल बोल रहा है कि जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है क्योंकि इससे पहले के सब जीरो है। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इनसे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर मैं इसमें आपसे सिग्निफिकेंट फिगर बोलूं तो आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोलोगे, 1। क्यों, इसका आगे मैंने लिखा है कि सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ किसकी बेटा, डेसिमल पॉइंट, है ना। क्योंकि अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे आप साइंटिफिक नोटेशन में, 3 × -2। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कितना बेटा, 3। ये जो है जीरो, है ना, ये जीरो क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट की मुझे केवल पोजीशन बता रहे हैं, दैट इज द मीनिंग, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको बोल देता हूं 0.0052, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर कितना दोगे, 2। क्यों, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में जाते हो तो यू विल राइट दिस नंबर एज व्हाट, 5.2 × 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो दैट इज वाई दिस इज अवर सेकेंड रूल, जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे ओनली इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखते हो, तुम्हारी ये गंदी आदत है। नाउ द थर्ड रूल इज अवर zeros between 2 non-zero digit. Zeros between 2 non-zero digit are significant. तीसरा रूल जो है हमारा वो कह रहा है जीरोस
बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जो जीरो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, है ना। ज्यादा रूल, इसमें 5 रूल है बेटा, ज्यादा रूल जीरो के ही है। तो अगर मैं आपको किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट 2.005 दे रहा हूं, इसमें मैं आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो योर आंसर विल बी 4, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के जीरो हमेशा क्या होंगे हमारे, सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। चलो, 4th रूल है हमारा, जीरोस एट द एंड के जीरो, जैसे 10, 100 एंड में है, और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, है ना। देखो, बीच के जीरो का रूल हो गया बेटा, आगे के जीरो का रूल हो गया, अब जीरो पीछे का है, ठीक है ना। बीच के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे के जीरो अनसिग्निफिकेंट होंगे। अब एंड या राइट वाले के लिए रूल है कि जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड, है ना, दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। है ना, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ क्या आपका डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना। तो क्या मीनिंग है इसका बेटा, इस 4th रूल का, कि अगर मैं आपको नंबर दे दे रहा हूं कि आपके किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है 0.200, तो इसमें अगर मैं आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछूं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। सर पर पीछे के जीरो का अपन मानते ही नहीं, इसको 0.2 तुम बेटा खोए खोए चांद हो, पता नहीं कहां भटक जाते हो। ये 4था रूल मैंने पहले के वाले बता दिए, बीच वाले बता दिए, 4था रूल अब आगे पीछे के जीरो का। क्या रूल लिखा है पहले ये पढ़ लो आप। जीरोस एट द एंड, ये एंड में है, और राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड, राइट ऑफ ए नंबर, हाँ, राइट ऑफ ए नंबर, ये इसी नंबर के राइट में आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड, हाँ। दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। तो फिर ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है कि लेफ्ट में? तो जब रूल बोल रहा हूं तो उस रूल को फॉलो करो ना। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, तो ये राइट में है, इस वजह से इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके? 3। अब जो आप डाउट बोल रहे हो, ठीक है ना। अब अगर ये जीरो राइट साइड में नहीं है बेटा, तब ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 100 है, तो अगर मैं 100 में आपसे बोलूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 100 में आप सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 बोलोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो आप इसे 1 इंटू क्या लिखोगे? 10 की पावर 2। पावर हमारे लिए काउंट नहीं होती। बट इसी में अगर मैंने 100 पॉइंट कर दिया, इसे आगे भले कुछ ने लिखा हो, ठीक है ना, 100 पॉइंट कर दिया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। क्यों? क्योंकि इसे साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखूंगा मैं? 1.00। आ रही मेरी बात समझ में? क्यों 1.00? साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं 2 जीरो पावर में ले जा रहा हूं बेटा, तो ये डेसिमल क्या होगा? आगे खसकता जाएगा। तो 1.00 हो गया। अब ये दोनों जीरो क्या है बेटा? डेसिमल के राइट साइड में हो गए, तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है ना। तो ये रूल्स, 3 रूल आपके जीरो के हैं। पहला रूल तो बस सिंपल था कि नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो के 3 रूल है बेटा, लेफ्ट वाला, बीच वाला और राइट वाला। और लास्ट रूल है बस हमारा, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स as these are exact numbers, as these are exact numbers, and can be represented, can be represented by writing, can be represented by writing infinite number of zeros, can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal, after
इंटरपेसिंग है डेसिमल। तो अगर जैसे मैं आपको 2 बॉल बोल रहा हूँ बेटा कि आपके पास 2 बॉल है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, उसकी नंबर है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब 2 बॉल है बेटा, तो इसका मतलब इसमें आप जितने चाहो उतने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं ना। 20x अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आप 20 पॉइंट अगर आप 0 बोल दोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहलाएंगे? 3। 20.00 कर दोगे तो 4, इस तरह से ना। तो 2 इलस्ट्रेशन डाल लेना। तो काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। तो केवल 5 रूल है बेटा, बस थोड़ा सा अब मैं कल ही करा दूंगा ना कि एडिशन में क्या रूल फॉलो करेंगे और मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल फॉलो करेंगे। तो मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, ठीक है। तो कल हमारा ये चैप्टर मेरी तरफ से केवल 15-20 मिनट की थ्योरी है और आपकी तरफ से पूरा होमवर्क है, डिस्कस करके काइंड ऑफ करेंगे इस चैप्टर को हम, ठीक है। चलो।